हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टर राजनीतिक विज्ञान की ये चैप्टर जो है हर क्लास के हर बोर्ड के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनके सिलेबस में ये टॉपिक है। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. The पंचायती राज institution under there a silent feature of 73 is the amount that is the most important doing today here. The concept of Panchayati Raj is not only based on the ascent India believe that a good lives in the punch. A punch here Parameshwar but was very systematically is grounded by the Mahatma Gandhi. He believed in the power to the section of the people and the grassroots of democracy. That is a possible only thought of village panchayat. There is the most important for the village panchayat. Here the most important point, important of Panchayati Raj. What do you mean to important here of Panchayati Raj? The right of the British period is a panchayats play a very important role in the social life of the village and also resolve the minor debts among to the villagers under the British rule. The panchayat has lost the respect and the power which they had earlier enjoyed because of the new system of the court. The law and the review of collection through is independent India one of the directive principle of state policy in the constitution and directed the unions and the state government to try to take a step to the organize village and panchayats and give them to such a powers and authorities as may be a necessity to enable them to act as a unit of self-government. Panchayati Raj was not taken up to the seriously by the states. However, they are now given to constitutional status. There is the most important topic here, a recommendation of the Balwant Rai Mehta communities and the Ashok Mehta community. There is the most important topic for the exam view. The Balwant Rai Mehta community is 97 suggested by the democratic is a relations of the three-tier structure of Panchayati Raj. There is a three-tier structure Raj is a community. There is a Balwant Rai Mehta is in 1957, and this means that a Panchayati Raj should be a set up to the three level. There should be a furnished there with the sufficient power and the resource. These three tiers of Panchayati Raj are Jila Parishad at a district level and Panchayat Samiti at an intermediate block level and village or Gram Panchayat at the village level. There is a Balwant Rai community is the recognized here. In this change, a Panchayat Samiti was to be a most important, and these three bodies were interlinking as the lower body was represented in the higher body through its chairperson. The Panchayati Raj of the Balwant Rai Mehta community pattern was first introduced by the Rajasthan in 1957. There is established here introduced by Rajasthan in 1957. There is an important point, note down. The later other states also follow that essentially both the people and their state were extremistic about the Panchayati Raj. However, the Panchayati Raj instruction began to decline very soon owing to the government and indifferent the political interference. The Ashok Mehta committee set up to the government to review of Panchayati Raj submitted is a report in 1978. This committee is felt to the Panchayati Raj had inculcated is a political awareness among the rural masses. And however, it is not been too successfully is a carrying out economical development. Unlike the Balwant Rai Mehta community, the Ashok Mehta community suggests a two-tier structure of Panchayati Raj. There is a most important. Who is the suggested the two-tier structure of the Panchayati Raj? There is a Balwant Rai Mehta community and Ashok Mehta community suggested by the two-tier structure of Panchayati Raj. And these tiers were to be a Jila Parishad district level. And second here is a Madhya Panchayat is an administrative unit between village Panchayat and Panchayat Samiti in the two-tier structure. The main emphasis was laid for the Jila Parishad and not on the Panchayat Samiti as in the case of the earlier committee report. However, there is the recommendation of the Ashok Mehta committee could not be implemented due to the proposal to the Janta government in 1980. The state like a Bihar, Uttar Pradesh and Tamil Nadu did not be held election to the Panchayat for a long. At the same time,
Many new agencies were set up to the central government of like a district rural development agency to take up the development program in a is a collaborations with the state government with the panchayats having no role is in this is a programs. They themselves hardly had any fund to be take up the development project in the villages. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है पंचायती राज संस्थाएं। देखिए पंचायती राज संस्थाएं के जो है अनुसार हम इसमें जो है 73 आर्टिकल के विषय में भी जो है बात करेंगे, जो कि काफ़ी सुधार करने के लिए बनाया गया था। और इसके जो है बलवंत राय मेहता कमेटी और जो है अशोक मेहता कमेटी के विषय में भी यहाँ चर्चा करेंगे और इसको कब एस्टेब्लिश की गई थी, सारे विचारों पर जो है यहाँ पर डिस्कस हम करने वाले हैं। तो इसी तरह आप जो है देखते रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर को। तो इसमें यही बात बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाएं, देखिए पंचायती राज्य की अवधारणा न केवल पुरानी भारतीय विश्वास है, कहते हैं पंच भगवान रहता, ये तो आपने पहले भी सुना है कि पंच में भगवान रहता है, यानी पंच जो है परमेश्वर का रूप होता है, पर आधारित है। और यह अतुल महात्मा गांधी द्वारा पूरे उत्साह से इसका समर्थन भी किया गया था। यानी महात्मा गांधी जो थे पंचायती राज के समर्थक थे, काफ़ी उनका विचार था कि पंचायती राज्य ही होना चाहिए। वो लोग सभी वर्गों और न्यूनतम स्तर तक लोकतंत्र में विश्वास रखते थे। गांधी जी हर जो है तबके के जो है बातें रखते थे, उनका हर ताकत तथा तुलमुक्त जो है लोकतंत्र विश्वास रखते थे। वो सिर्फ ग्राम पंचायत से ही संभव था और ग्राम पंचायत ही ये संभव कर भी सकता था, क्योंकि महात्मा गांधी का विचार ही यही था कि पंच परमेश्वर का रूप होता है और इसी प्रकार जो है पंचायती राज की व्यवस्था किया जाए। यानी महात्मा गांधी एक तरह से राम राज चाह रहे थे कि कहीं भी किसी तरह का कोई भी लोगों को प्रॉब्लम ना हो और वो अपना जीवन जो है सुचारू रूप से चला सके। इसलिए महात्मा गांधी ने पंचायती राज का जो है सदैव सिफारिश किया और उन्होंने काफ़ी उत्साह भी से समर्थन भी किया और उनका विश्वास भी था कि लोकतंत्र तभी काफ़ी मजबूत हो सकता है अगर पंचायती राज को मजबूत किया जाए। तो इसलिए जो है महात्मा गांधी ने इस पर बहुत ही जोर दिया और काफ़ी इन्होंने इस पर कुछ अच्छा करने की कोशिश भी उन्होंने काफ़ी इस विषय पे किया। कहते हैं पंचायती राज का अब क्या महत्व है। कहते हैं ब्रिटिश युग तक जो पंचायतों ने गांवों के समाजी जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ग्रामीणों के बीच कई छोटे विवादों को भी सुलझाया गया है और ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत अदालतें, कानून और राजस्व संग्रह की नई व्यवस्था के कारण पंचायतों की पुरानी शक्ति और सम्मान समाप्त हो गई है। यद्यपि स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत संघीय और राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने तथा उन्हें ऐसी शक्ति और सत्ता देने के प्रयास करने के निर्देश देते हैं जो उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो, परंतु राज्य में पंचायती राज को गंभीरता से नहीं लिया गया और इन सर्वाधिक दर्जा भी दिया गया। देखिए ये बात तो सही है कि हमारे देश में रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे भी बनाए गए हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इन पर जो है गंभीरता नहीं दिखाई गई और गंभीरता न दिखाने की वजह से जो है ये काफ़ी जगहों पर लागू नहीं हो सका। पश्चात हमारा जो आता है टॉपिक बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश है। देखिए ये बलवंत राय मेहता और कमेटी और अशोक मेहता कमेटी ने ये सिफारिश किया था कि पंचायती राज का स्थापना हो और कहते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 ने पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय ढांचों में लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के तरीके सुलझाए थे। यानी बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय लोकतांत्रिक जो है बनाने के लिए सिफारिश किया गया था और इसका अर्थ था कि पंचायती राज 3 स्तरों पर स्थापित किया जाए और उन्हें पर्याप्त शक्तियां और संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए। पंचायती राज के 3 स्तर इस प्रकार थे। जिला स्तर पर जिला परिषद थी और ब्लॉक स्तर पर मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक समितियों को प्रायोरिटी दी गई थी और गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत। तो ये 3 स्तरीय कहा जाता है या 3 टायर्स है, जिसके बाद विषय में हम आगे चर्चा करेंगे वो भी विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो इसमें 3 स्तरीय जो होगा जिला स्तर जिसमें जिला परिषद को लिया जाएगा, ब्लॉक स्तर पर जो है मध्यवर्ती स्तर या ब्लॉक समिति ली जाएगी और गांव के स्तर पर जो है ग्राम पंचायत लिया जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रखता है। इस योजना में पंचायत समिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी और ये तीनों संस्थाएं आपस में जुड़ी हुई थी क्योंकि निचली संस्थाओं को ऊपर की संस्था ने इसके अध्यक्ष के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त था। यानी देखा जाए जो ऊपर वाला था वो कमजोर थी, उसके बाद मिडल वाला जो होता था वो थोड़ा सा मजबूत होती थी और नीचे वाला जो होता था काफ़ी मजबूत होता था। यानी देखा जाए तो बीच वाला जो होता था दोनों को लिंक का काम करता था, यानी दोनों को मिलाने के मध्य का काम करता था। कहते हैं अगर हम देखें तो बलवंत राय मेहता कमेटी के पंचायती राज के परिरूपों को सबसे पहले 1959 में राजस्थान में लागू किया था। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर कि इसको जो पहली बार जो इसको बनाया गया और इसको लागू किया गया वो किया गया 1959 में।
यानी 1959 में इसको कहाँ लागू किया गया? राजस्थान में। बाद में अन्य राज्यों ने भी इसका अनुसरण करना शुरू कर दिया और आरंभ में लोग राज्य दोनों को पंचायती राज के प्रति काफ़ी उत्साहित भी थे, क्योंकि उनको लगा कि शायद इससे जो उनकी जीवन है काफ़ी सुधरेगी। परंतु शीघ्र ही सरकारी उदासीनता और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण पंचायती राज संस्थाओं का पतन होने लग गया। तो कहते हैं, देखिए दोस्तों, इस साफ ये बात आता है कि कोई चीज़ को अगर अच्छे से नहीं किया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे कि आप भी अगर पढ़ाई ढंग से ना करो तो आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं हो सकते हैं। अगर अच्छे से पढ़ोगे, समझोगे, तभी उसको जो है अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करोगे। तो यही बात है कि इन्होंने रूल रेगुलेशन तो लागू कर दिया, लेकिन इसमें जो है सरकार की तरफ से कोई भी जो है उचित कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से त्रिस्तरीय जो थी बिल्कुल पतन के कगार पे आ खड़ी हुई। सरकार द्वारा पंचायत राज की समीक्षा हेतु गठित अशोक मेहता कमेटी ने 1979 में यानी 1979 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस कमेटी का मानना था कि पंचायती राज ने ग्रामीण लोगों में राजनीतिक जागरूकता पैदा कर दी थी, परंतु यह आर्थिक विकास लाभ पाने में सफल नहीं हो रह पाई। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के विपरीत अशोक मेहता कमेटी ने द्वितीय पंचायती राज का सुझाव दिया। यानी देखिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने त्रिस्तरीय जो संस्थाओं का जो बनाया था, लेकिन अशोक मेहता कमेटी ने इसको द्विस्तरीय बना दिया, यानी दो के ऊपर ला गया। वहाँ पर 3 थे, अब यहाँ पर 2 को ही जो है प्रायोरिटी दी गई। ये 2 थे जिला स्तर पर जिला परिषद और दूसरा थे मंडल पंचायत, यानी जिला स्तर पर जिला परिषद को लिया गया और मंडल पंचायत ये जो थे 2 जो बिल्स थे उस पर बनाया गया था। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के बीच एक प्रशासनिक इकाई थी, यानी द्विस्तरीय प्रणाली के जो है मुख्य बल जिला परिषद पर था, न कि पहली कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती समिति पर था। परंतु 1980 में जनता सरकार के गिर जाने के कारण अशोक मेहता कमेटी की सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। कहते हैं ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट ही रहता है कि सरकार जिसकी रहती है उसी की चलती है, लेकिन ये जो बनाई गई थी त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय वो काफ़ी जो है ग्राम के लिए इम्पोर्टेंट था, लेकिन कहते हैं ना, जब सरकार गिर गई तो इसको लागू भी नहीं किया गया, सिर्फ इसको कॉपी में ही और पेजों में ही सीमित रख दिया गया। कहते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य में काफ़ी समय तक पंचायतों के जो चुनाव नहीं करवाए गए। उसी समय केंद्र सरकार ने विकास कार्यक्रम को अपने हाथों में लेने के लिए कई नई एजेंसियां जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिक्रमण गठित, और इन कार्यक्रमों में जो है पंचायत की कोई भूमिका नहीं थी। पंचायतों को अपने पास विकास परियोजना के लिए भी कोई पैसा नहीं था। तो इसमें तो जर्नली सी बात है कि कई जगहों पर पंचायती राज थी भी नहीं, और थी भी तो उनको जो है सही से विकास नहीं किया जा सका।